A very warm welcome to all our viewers who are watching. In today's special podcast, we will be exploring two of the most sought after professional qualifications in the commerce field: Chartered Accountancy and Association of Chartered Certified Accountants, CA and ACCA. To guide us through this journey, we are privileged to have with us Mr. Vipul Gedia sir, a senior career counselor and Gujarat academic head of JK Shah classes, Gujarat. Sir, thank you so much for joining us today. Yes, welcome. So, sir, before we dive into CA and ACCA, could you briefly tell us more about yourself and inform our viewers how many students have you prepared for the CA examinations? Okay. Myself, Vipul Gedia, I am Gujarat Academic Head of JK Shah classes, and I have been taught more than 12 to 15,000 students for professional exams. Wow, that's quite the extraordinary number, 12 to 15,000 students. So, sir, let's start off with CA. Could you explain to us what the CA course is and tell us why it is considered one of the most respected professions in India? Look, the full form of CA is a Chartered Accountant, and the degree is given by ICAI, which is Institute of Chartered Accountant of India, which is second highest body in this world. मतलब एक तो ये हो गया कि वो वर्ल्ड की सेकंड इम्पोर्टेंट हाईएस्ट डिग्री है जो आईसीएआई गवर्नमेंट बॉडी है, और ये खाली इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी कई कंट्री से वैलिड है. So, we've seen the importance of this organization, ICAI, as you said, and the importance of this course. But nowadays, the students, or many of our students, we've heard about a different course that's come up recently, and it's called ACCA. So, could you tell us what exactly is ACCA and why is it becoming so popular? Yes, ACCA is also professional course, just like CA is the Chartered Accountancy of India, same as ACCA is the Chartered Accountant of UK. Nowadays it is very popular because last 5 to 6 years से यहाँ पे उनका एजुकेशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे उनकी कोचिंग स्टार्ट हो गई है, कई सारी अवेयरनेस आई है, इसलिए ACCA, वैसे ACCA भी मोर देन 180 कंट्रीज़ में वैलिड है. Okay, that's very interesting. So now that you've told us what the CA course is, what ACCA is, and we've established that CA, ACCA is offered in India and mostly in a lot of countries, actually. So that begs a big question. What actually is the difference between CA and ACCA? Look, before telling I am the difference, I want to say there is a more than 2 to 3 similarities between these two courses. Just like CA and ACCA, both are professional course, both are very disciplined course. बट CA जो है वो इंडिया में फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिट ये सब काम करता है. वैसे ACCA यूके में, अगर आप इंडिया और यूके इन दोनों को छोड़ दो तो बाकी जब सब जगह पे ACCA और CA सेम है, पर यूके में ACCA का इम्पोर्टेंस है, इंडिया में CA का इम्पोर्टेंस है. बट इंडिया में भी अब आप आउटसोर्सिंग वर्ड आपने सुना होगा, तो ACCA से आप आउटसोर्सिंग वर्क कर सकते हो, तो इंडिया में भी अब ACCA की एम्प्लॉयमेंट है. And if we talk about these two courses, how would you compare them in their difficulty level? डिफ़िकल्टी लेवल से देखें तो CA इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट देन ACCA, बिकॉज CA में आपको एक साथ ग्रुप की एग्ज़ाम देनी पड़ती है. जैसे फाउंडेशन में 4 पेपर्स देने पड़ते हैं, इंटर में 6 पेपर देने पड़ते हैं, और फाइनल में आपको वैसे ही सेम 6 पेपर देने. हाँ, आप ग्रुप वाइज कर सकते हो. और ACCA में क्या है कि यू कैन गो विथ सिंगल पेपर, एवरी 3 मंथ यू कैन गिव 1 पेपर. तो बच्चों का फोकस रहता है कि भाई एक ही पेपर देना है, तो वो 3 महीने तक उन्हीं की प्रिपरेशन करेंगे. सो दैट्स वाई रिमेनिंग बोथ आर सेम. Okay, we've established on the difficulty level. What would you say about the recognition that they give you in terms like CA and ACCA? As I told, CA is also important, ACCA is also important. जैसे इंडिया में बिग 4 है, तो बिग 4 में CA, ACCA दोनों काम करते हैं. बट इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इंडिया से बाहर कहीं पे ऑडिट साइन नहीं कर सकता. वैसे ACCA जो है वो यूके की बॉडी है, तो वो वहाँ पे फेमस है. बट आप इंडिया और यूके को छोड़ो तो बाकी दोनों इम्पोर्टेंस है. अब वो बच्चे को फोकस पे रहता है. जैसे
फुल्ली डिसिप्लिन कोर्स है सीए। आपको एक साथ अगर ग्रुप की तैयारी करनी है, आपका फ्यूचर पर्पस अगर इंडिया है या आपका फ्यूचर पर्पस अगर आउट ऑफ इंडिया है, तो भी आप सीए कर सकते हो। यानी सीए एंड एससीसीए बोथ हैव इंडिविजुअल सिमिलरिटी। जैसे किसी को पार्ट में प्रिपरेशन करना है कि मुझे एक पेपर देना है फिर दूसरा पेपर देना है, तो वो एससीसीए कर सकते हैं। लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है सीए, क्योंकि सीए का रिज़ल्ट थोड़ा ऐसा आता है, तो वो जिनको डिसिप्लिन से प्रिपरेशन करिए वो सीए कर सकते हैं। So, what if a student would like to pursue CA and ACCA? And are there any advantages of doing so? सॉरी, Of pursuing both CA and ACCA? यस, दिस इज़ बेनिफिट ऑफ ड्यूअल डिग्री। और अभी मल्टीनेशनल कंपनियाँ जो है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें मोस्ट ऑफ ड्यूअल डिग्री का, जैसे सीए के साथ यूएससीए में हो गया। कई लोग सीए, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको 4 या 5 पेपर दे के, अभी एक नया रिफॉर्म भी आने वाला है, तो 4 पेपर दे के भी आप एससीसीए की डिग्री ले सकते हो। तो बेनिफिट क्या होगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप एससीसीए हो तो मोर देन 180 कंट्रीज में, तो आपके पास ग्लोबल एक्सपीरियंस आ सकता है दोनों डिग्री एक साथ करने से। So, as you said, it gives us a global edge. It diversifies our degrees, diversifies our skills. It opens up our network. Yeah, if you give me 1 minute more, then I can explain in a little bit another way. Very well. जैसे आप देखो तो आज से 20-25 साल पहले अगर कोई एमबीए था तो समझ लेता था कि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, आई एम नाउ सिक्योर। एमकॉम होता था, धीरे धीरे वो एमकॉम एमबीए हम सबको पता है कि अब जैसे प्रोफेशनल कोर्स है। तो आज से 5-7-10 साल पहले बिफोर कोरोना ऐसा लगता था कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो इनफ है, या आप एससीसीए हो तो इनफ है। नो डाउट इट इज़ इनफ, पर जिनका ड्रीम बहुत बड़ा होता है तो वो अब ड्यूअल डिग्री करते हैं। जैसे सीए के साथ सीएफए हो गया, सीए के साथ एससीसीए हो गया, सीए के साथ यूएससीए में हो गया। तो ये कैसा हो रहा है, जैसे आप या तो खाली बॉलर हो या तो खाली बैट्समैन हो, बट अगर आपके पास ड्यूअल डिग्री हो तो आप ऑलराउंडर हो, तो आप अच्छा इनकम भी कर सकते हो और आपके स्कोप भी प्रैक्टिस के काफ़ी सारे बढ़ जाते हैं। Wow, that cleared up. So, many of our students, they worried that CA has a very low passing rate, a very low pass percentage. So, should that discourage them from pursuing it? नो, आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस मिथ, बिकॉज सबको ऐसा लगता है कि सीए का रिज़ल्ट कम है। मैं आपको एक स्टेटिस्टिक्स देना चाहूँगा। जैसे लास्ट रिज़ल्ट जो आया है, दैट इज़ May 2026 CA फाउंडेशन, विच इज़ 20% ओनली। तो दैट मीन्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 20% स्टूडेंट्स आर पास, बराबर। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि इसका रिज़ल्ट 20% है, बट सीए इंस्टीट्यूट एक ही साल में 3 अटेम्प्ट लेते हैं, जनवरी, मई एंड सितंबर। आप तीनों का एवरेज 20% ऐड करो तो दैट इज 60% रिजल्ट। तो 60% रिजल्ट, दैट मीन्स आई कैन से कि कई बार किसी एचएससी बोर्ड का भी इतना रिजल्ट या इसके आसपास ही रिजल्ट होता है। तो आप पूरे साल का देखोगे तो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 62 आर पास इन सीए फाउंडेशन, सेम एज इंटर में जैसे 10 to 12% रिजल्ट आता है बोथ ग्रुप का। अगर आप सिंगल ग्रुप निकालोगे, दूसरा ग्रुप निकालोगे, दैट इज़ मोर देन 25 to 30%। अब आप एक साल में इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, क्योंकि आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो, तो 30 into 3 यानी 90% रिजल्ट आता है। बस, तो ये सीए की एक मीथ होती है कि हम एक ही स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं। हम अगर पूरे साल के स्टेटिस्टिक्स को देखें, क्योंकि जनरल रिजल्ट आप भी समझ रहे हो कि 12th में हम रिजल्ट बोलते हैं कि भाई 90% रिजल्ट है, तो वो 3 महीने का नहीं होता, दैट इज़ 12th रिजल्ट, यानी एक साल का रिजल्ट है। तो आप सीए के रिजल्ट को एक साल में कन्वर्ट करोगे तो ये परसेंटेज बढ़ जाएंगे। Wow, that is a big myth that you've busted right there. It's Yeah. really fascinating to see like all the numbers. What are they in reality? या So, what would you say should be the qualities or skills that a student should develop from school? Let's say someone like me to succeed in CA in CA and ACCA. या अगर आप 11th या 12th में हो और आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है, look, out of 100 students there are maximum 15 to 20 students are doing professional course, just like CA, SCCA, CS, USCA में। तो वो 20% स्टूडेंट्स अगर पहले से डिसाइडेड है, जैसे 11th कॉमर्स से अगर वो डिसाइडेड है कि मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है,
तो उनको बाकी स्टूडेंट से थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा। कैसे? ऐसा नहीं है कि उनको ज़्यादा पढ़ना है, उनको जैसे अकाउंट है तो अकाउंट के थोड़ी डेप्थ में जाना पड़ेगा, सारे चैप्टर सारे सम सॉल्व करने पड़ते हैं। हर एक कॉमर्स के सब्जेक्ट का, जैसे अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो मैथ्स है, ये सब्जेक्ट्स में उनको थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा है। वो जितनी प्रैक्टिस और डेप्थ लेंगे प्रोफेशनल कोर्स में, उतना ही काम उनका ईजी हो जाता है। यू विल बी सरप्राइज देन इन सीए फाउंडेशन there are 4 subjects: account, law, economics and QA. The QA, that means quantitative aptitude, that is mathematics, statistics and logical reasoning. If I am talking about Gujarat board student yani state board students, account, economics and statistics 80% syllabus of 12th standard of 11th standard. सीबीएसई की बात करें तो इकोनॉमिक्स, अकाउंट और मैथ्स की बात करें तो 85% सिलेबस जो है वो 11th-12th का ही सीए फाउंडेशन में है। तो वो 11th-12th से ही अपना फोकस क्लियर करके कंसेप्ट की डेप्थ में पढ़े। हालांकि वो एटमॉस्फेयर में पढ़े तो वो प्रोफेशनल कोर्स में सक्सेस होने के चांस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। So what you're saying, it just requires a tiss bit more effort and the will to learn. सॉरी, So you're saying it requires just a bit more effort and the will to learn. या उनका थोड़ा लुकआउट अलग होना चाहिए, डिसिप्लिन थोड़ा अलग होना चाहिए, बस। बाकी वो जो पढ़ रहे हैं सब वही, इनसे बेनिफिट ये होगा 12th के परसेंटेज तो अच्छे होंगे ही, बट साथ साथ में आप प्रोफेशनल कोर्स के लिए बेस भी बना रहे हो। अब जैसे हमारे जेकेसा क्लासेस की मुंबई में, तो मुंबई में वहाँ पे हम सबको पता है 11th-12th होता ही नहीं। FY जैसी, दैट इज़ फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज, एंड SY जैसी, दैट इज़ सेकंड ईयर जूनियर कॉलेज। तो वहाँ पे हमारे पास मोर देन 3,000 to 4,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 11th से ही CA चालू कर देते हैं। तो उनका फोकस वही पे है, प्रोफेशनल कोर्स। जो 11th से ही ऐसी CA चालू करते हैं, जो 11th से ही प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी चालू कर देते हैं। So, speaking of preparation and everything, another thing that comes into mind in many students, especially with ACCA more than CA, is that English communication skills are important. So, what would you say about this? I want to say that if you know English language, कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जैसे गुजराती मीडियम या कोई पर्टिकुलर मीडियम से, तो वो सोचते हैं कि मेरा इंग्लिश वीक है ऐसा, पर वो इंग्लिश देखते हैं 11th-12th के सब्जेक्ट को, जैसे आप समझ रहे हो कि मैं, वो देखते हैं टेक्स्ट बुक को। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे पास जेकेसा क्लासेस में गुजराती मीडियम से कई स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक लेके आए हैं। सो इंग्लिश, हाँ, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो ये आपको हेल्प कर सकता है, दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपका इंग्लिश पे ग्रिप है तो थियरी सब्जेक्ट में आपकी थोड़ी ग्रिप बट ऐसा नहीं कि आप गुजराती मीडियम यानी पर्टिकुलर कोई मीडियम से हो तो आप प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर सकते। नो, बिकॉज शुरू के 1 या 2 महीने में वो थोड़ा टफ लगता है। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर हमारी बड़ौदा ब्रांच की बात करें, जेकेसा क्लासेस वडोदरा ब्रांच, तो दीप प्रजापति एंड वन मोर स्टूडेंट, both are only 2 students are all India rank in whole Vadodara city, and both are from Gujarati medium. So if your English is good, then it is okay, but this is not necessary that you are from any English medium students or CBSE student. If you are from Gujarati medium, Hindi medium, you can do also and also get success in professional courses. That's good to know. It's good to know that certain communication and language barriers can't stop you from achieving such a high level in your life. मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग, जैसे आप जानते हो जेकेसा क्लासेस, तो जेकेसा क्लासेस की मोर देन 120 ब्रांचेस इन इंडिया, और अभी दुबई में भी 1-2 ब्रांच है। तो उनके जो मेन ओनर, फाउंडर जो है जेकेसा सर, वो खुद गुजराती मीडियम स्टूडेंट हैं 12th तक। Wow, that's quite a feat. Yes. So, another question is, you know, with technology and AI advancing so quickly, of course, it's advancing at a very rapid pace. So, and artificial intelligence is also starting to step into the finance industry. So, will ACCA and CA professionals even still be in high demand, seeing that AI is coming in and taking over? Yeah. Look, I want to say, is it English or which language you? हिंदी, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर मीडियम से भी होंगे, तो मैं थोड़ा, I think Hindi would be much more better. It will suit a wide variety of viewers.
ओके ओके, थैंक यू। तो जैसे 2000 में आईटी रिवॉल्यूशन ईयर बोला जाता है। मतलब तब सारी बैंक में कंप्यूटर आ गए थे नए नए। तब सबको ये डर लग रहा था कि अब बैंक एम्प्लॉय की नो जॉब चली जाएगी, कंप्यूटर आ गए हैं। उनकी जॉब नहीं गई कि कंप्यूटर आया से जॉब चली गई, उनकी जॉब गई जो कंप्यूटर नहीं सीख पाए। व्हाट आई वांट टू से कि एआई के आने से कोई जॉब नहीं जाएगी। प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ। जैसे कि एग्जांपल है, अगर आप बीमार हो तो आप अपनी बीमारी का डिस्क्रिप्शन गूगल में डालोगे, गूगल आपको दवाई बता देगी, पर क्या वो दवाई लोगे आप? हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर। तो प्रोफेशनल जॉब जो है वो कभी एआई नहीं ले सकता। बट अगर आप एआई को यूज़ कर रहे हो तो यू कैन बी बेटर इन योर प्रोफेशनल कोर्स ऑल्सो। एज आई टोल्ड कि सीए इंस्टीट्यूट वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है, तो आईसीएआई भी अपना सिलेबस अभी 1 साल में एआई के बेस पे चालू कर रही है। मतलब उनके सिलेबस में ही एआई आ रहा है, तो वो अपग्रेड है, इसीलिए वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है। तो अभी जो जनरेशन आएगी, जो सीए पढ़ेगी नेक्स्ट जनरेशन, वो एआई के साथ सीए पढ़ने वाली है। वो ऐसी सीए में भी सेम चेंज आ रहे हैं। So what you're saying is AI won't take over CAs, they will help us. या यस यस। And so if you had, let's say, if you could give one piece of advice for a class 10 student and one piece of advice for a class 12 commerce student who is aspiring to become a professional accountant, what would it be? या फॉर क्लास 10 स्टूडेंट, इफ़ यू आर गुड इन स्टडी, पहले ऐसा बोला जाता था, जैसे हमारे समय में 10th में आप अगर हो तो आपके परसेंटेज अगर बहुत हाई आ रहे हैं तो साइंस में चले जाओ, आप अगर कम परसेंटेज आर्ट्स में चले जाओ, आप कहीं पे नहीं हो तो कॉमर्स में चले जाओ। ऐसी एक जनरल मीथ होती थी। पर अभी देखो तो मैं लास्ट 26 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, तो लास्ट 10 ईयर्स में 10th के बाद 90% के ऊपर 95%, 94% स्टूडेंट्स आर कमिंग इन कॉमर्स। हमारा लास्ट एक एक्सपीरियंस है कि पिछले 3 साल में मेरे पास 12 स्टूडेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने 11th-12th साइंस में किया, फिर सीए में आए हैं। बराबर। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि साइंस खराब है ऐसा कुछ, पर अगर आपका पूरा फोकस साइंस पे है तो ही साइंस लो। ऐसा नहीं है कॉमर्स में कैरियर नहीं है। कॉमर्स में जैसे आज आप देखोगे तो दुनिया में फाइनेंस वाले करोड़ों कमा रहे हैं, बैठे बैठे घर पे लैपटॉप पे ये मार्केट ये सब, उसमें करोड़ों कमा रहे हैं। तो इफ़ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, इन फाइनेंस, फॉर इफ़ you want to become a businessman, entrepreneur, then commerce field is a sky. 12th कॉमर्स के लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप 12th में हो तो एक चीज़ समझ लो कि अब वो समय गया कि खाली बीकॉम हो के आपको जॉब मिलेगी। आप FY, SY, TY बीकॉम के साथ कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करो, बिकॉज प्रोफेशनल कोर्स करने से आपके अंदर 3 अच्छी चीज़ें आती है, दैट इज स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करो, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट करो, कंपनी सेक्रेटरी करो, ACCA करो, USCMA करो, CMA करो, तो इसमें आपका पहले फाउंडेशन ही आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा, जैसे हम बोलते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपकी हो जाएगी। फिर आप इंटर में जाओगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। जैसे आप मैं CA की बात करूँ तो CA इंटर के अंदर आपको टैक्स, फाइनेंस, ये सब, ऐसा बोला जाता है कि अगर CA इंटर की पढ़ाई आपकी हो गई तो FY से लेकर MCOM तक की पढ़ाई होगी। फिर आप 2 इयर्स आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और ये दोनों को मिला के आफ्टर 2 इयर्स देयर विल बी यू कैन डेवलप योर स्किल ऑल्सो। तो आपका नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस तीनों बढ़ेगा अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स में आ रहे हो तो। That was a very eye-opening advice. Even as a class 12 commerce, I feel like that answer, opened up my mind a lot. थैंक यू। So, enough of the very technical questions. Let's have some quick, fun questions. Yeah. CA or ACCA? बोथ। Both. So, okay, hard work or smart work? Always hard work, because smart work is a child of hard work. So if you want to go for smart work, first of all you have to do hard work. Okay, calculator or Excel? Master in Excel with calculator. Discipline or motivation? Always discipline. If you are disciplined, you can always reach at your goal. But if you want that someone is motivated you, then your remote control is in another hand.
मोटिवेशन का फुग्गा ऐसा है जो कभी भी फूट सकता है, तो मोटिवेशन आपको 1 या 2 दिन तक ही मोटिवेट कर सकता है, बट डिसिप्लिन ऑलवेज मोटिवेशन. Definitely. Okay, knowledge or marks? Knowledge, because marks are the byproduct in professional course of knowledge. One book every commerce student should read. Must be, if you tell me one book, then okay, but I want to suggest 3 books. Please. But if you tell me one book, then always Rich Dad Poor Dad. But if you allow me for 3 books, first is Rich Dad Poor Dad, second is 5 AM Club, it is for discipline, and third one, The Monk Who Sold His Ferrari, third one. One habit every future CA or ACCA student should develop. Discipline about your study and time management. Maybe one myth about CA that you'd like to break. As I told, myth about CA, that is result is very lowest, but if you are multiply with 3 attempts, it will be more. What about a myth about ACCA that you'd like to break? ACCA में एक ऐसी मिथ है कि ACCA इंडिया में नहीं चलता, ऐसा नहीं है. ACCA इज अलाउड UK plus 180 कंट्रीज, वो हर जगह चलता है. Okay. So finally, sir, if every student listening to this podcast could remember just one message from you, what would you want that to be? लुक, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि आज के समय में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप किस तरीके से पैसे कमा रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोफेशनल कोर्स हो, देखो आपके नाम के पीछे अगर कोई चीज़ लग रही है तो वो डिग्री है. जैसे MCOM, MPhil, MBA, वो सब डिग्री है. तो डिग्री में आपका, जब आप जॉब पे जाओगे तो सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आपने MBA किया तो कहाँ से किया है. दैट मीन्स वो MBA की वैल्यू नहीं है, बट वो इंस्टीट्यूट की वैल्यू है, बराबर. बट प्रोफेशनल कोर्स नाम के आगे लगता है. फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब. तो अगर आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो डिसिप्लिन से करो. ये 4 या 5 साल आपको थोड़ा हार्डवर्क लगेगा, पर वो पूरी ज़िंदगी आपकी एकदम जलसा वाली हो जाएगी. बट अगर ये आप 4 या 5 साल जलसा करोगे तो फिर पूरी ज़िंदगी हार्डवर्क करना पड़ेगा. That was a very heartwarming message, sir. So, sir, thank you so much for sharing your time, your wisdom, your guidance with us. It was really a very nice experience, and I'm sure that in today's conversation, it opened up a lot of our viewers' minds about CA and ACCA, and I'm sure it definitely helped them make informed career decisions. And Yes. It was really a pleasure to have you, sir. We are hopeful that you'll be with us here next year, the year after that, and Yeah, many more always. years to come. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से कि आप इतनी छोटी सी उम्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहीं पॉडकास्ट किए तो सामने एज बड़ी होती है. आज पहली बार मेरी लाइफ में मैं आपके साथ, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड. यस. Thank you so much, sir. Thank you so much. ओके ओके. I'm flattered. So, on behalf of Hanifa School, I thank you once again, sir. It was really a pleasure having you. I loved my conversation with you here today. And thank you to all our viewers for watching till the end. We really wish to see you at the seminar, and we wish you all the very best for your future. थैंक यू. So, any one important message if you want to give? वो दे दिए. We did give. So, by looking at the camera directly, just any one, a 1 minute thing which you want to say, or advice to the students who are preparing, who have just started their journey, people who are in the middle. तो आप ऐसा कह सकते हो कि for foundation batch, students who are going for it, just 12th cleared, this is something which you can do. For the second level, intermediate level, this is the advice. And for CA final, you already achieved these 2 things. So for you, just continue with the journey, kind of something kind of a motivational 1 minute thing which you can give. The camera is directly on you, sir. You can also maybe if you can shift this side Okay, and okay. look into the camera and speak, that will be good. आप मुझे इशारा करना. हाँ सर, आप इधर आप जेम्स है, कोई दिक्कत नहीं, वो रिकॉर्डिंग में स्टॉप ही हो रखे. आप चाहे इधर थोड़ा सा मुड़ जाए सर, तो जी थोड़ा सा. सर नमन सर, प्लीज गाइड अस.